Hello students, welcome back to our SST class. This is Ayub sir and I welcome you all in our SST class. Okay, so today in this video we are going to see our second topic of geography subject from class 8th. Fine, this topic has been divided into 3 different videos. Okay, so in this video we are going to see the first part of our topic. So stay tuned till the end of video. Fine. Let's get started with the topic. The name of our topic is Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resource. This topic is very important. Okay, so be connected, and if you got any difficulties, any doubt in the topic, in the video, so you can comment in the comment section. Through this video, you will be able to understand the topic and you will be able to get some easy notes from the topic. Okay, so let's get started with the introduction of our topic. So when it goes to the introduction, see, people who stay at different places, they lead to different things. Okay, जो अलग अलग जगह पे रहते हैं तो वो अलग अलग चीज़ों का मज़ा लेते हैं. They enjoy many different things, right? As in, there are different varieties, different things that they are enjoying. Okay, so let's see what are those. So it can be varied through climate, fine, land variety, and there can be differentiation into the quality of water, soil, land, animals, टेक्नोलॉजिकल यूजेज एंड नेचुरल वेजिटेशंस. सो जो लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं तो उनका रहन सहन भी अलग होता है. ओके, सो दिस places may differ from one another on the basis of availability of such resources. See, as in, we can say that people who are living in certain area and people who are living in rural area, so जो city area और rural area में रहने वाले लोग हैं उनका रहन सहन अलग होगा. So the quality of water that they were enjoying, that would be different. Soil, land, animals, technological usage या natural vegetation, तो बहुत सारी चीज़ों का डिफ्रेंसिएशन आता है, राइट? सो द बेस्ट एग्जांपल विल टेक अकॉर्डिंग टू कंट्री. सी, इन इंडिया द इंडियन पीपल, ओके, दे हैव डिफरेंट लाइफस्टाइल एंड पर्सन इन अमेरिका ही हैज़ अ डिफरेंट लाइफस्टाइल. ओके, सो अलग अलग देश की अलग अलग भाषाएं भी होती है और अलग अलग क्लाइमेट भी होता है, राइट? So we'll go into the detail. So in this video we are going to see the very most important thing. We are going to study about it, and that particular thing is land. ओके, सो हियर व्हाट इज़ लैंड. लैंड क्या है हम देखते हैं, राइट? ज़मीन, हमको मालूम है कि लैंड क्या है, ज़मीन है. बट व्हाट आर द यूजेस ऑफ लैंड? ओके, व्हाई वी नीड टू कंजर्व लैंड? ओके, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आएगी. फाइन, सो लेट्स सी. ओके, व्हाट्स लैंड? सी, yes, it is one of the most important resource. ये बहुत ही important resource है. It covers 30% of Earth's surface. ये हमको मालूम है, राइट? 30% of Earth's surface is covered by land and 70% by water. So water हम बाद में पढ़ेंगे, बट ये जो 30% है उसमें से भी बहुत सारा पार्ट इज़ नॉट हैबिटेबल, विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर सेटलमेंट ऑफ ह्यूमन बींग. ओके, जहाँ पर ह्यूमन बींग नहीं रह सकता, राइट? इंसान नहीं रह सकता. तो इस 30% में से भी इतनी लैंड, इतनी ज़मीन ऐसी है जहाँ इंसान नहीं रह सकता. ओके, सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल कि कहाँ पर इंसान रह सकते हैं, एंड व्हाट आर द फिजिकल एरियाज जहाँ पे इंसान नहीं रह सकते, दैट विल सी. I hope that you got to know about land. Okay, it is one of the most important resource. It covers 30% of Earth's surface. Most part of land is not habitable. अगर आपको नोट लिखने आया, so it will be very useful. Okay, these 3 points, and 4th point you can add that what are the responsible factors or areas that consist less population. कहाँ पर less population रहता है और कहाँ पर population easily reside हो सकता है.
सो लेट्स सी एरियाज दैट कंसिस्ट लेस पॉपुलेशन। अब ये कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं, ओके, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन, ओके, जहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा सर्दी रही या बहुत ज़्यादा गर्मी रही वहाँ पर भी हम नहीं रह सकते। स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, ओके, माउंटेन्स में जो बहुत ही स्लोपी होता है वहाँ पर भी नहीं रह सकते। यस, थिक फॉरेस्ट रीजन्स, लो लाइंग एरियाज दैट आर प्रोन टू वाटर लॉगिंग, जहाँ पर पानी जमा हुआ रहता है वहाँ पर भी रहना मुश्किल है। रग्ड टोपोग्राफीज, डेजर्ट एरियाज, या डेजर्ट एरियाज में भी रहना बहुत मुश्किल है। सो लैंड तो है, ओके, बट लैंड होने के बावजूद भी जो है कुछ ऐसी ज़मीन है जहाँ पर हम नहीं रह सकते। आर सेकेंड पॉइंट इज सेइंग दैट राइट, इट कवर्स 30% ऑफ अर्थ सरफेस बट मोस्ट पार्ट ऑफ लैंड इज नॉट हैबिटेबल, है ना। बहुत सारा हिस्सा ज़मीन का ऐसा है जहाँ पे लोग नहीं बच सकते। सो दिस आर दी प्रॉब्लम्स, दिस आर दी वेरिएशंस। क्लाइमेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी नहीं रह सकते, पानी जमा रहने की वजह से भी नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा घना जंगल होने की वजह से भी नहीं रह सकते, राइट। सो दिस आर सम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेस पॉपुलेशन टू रिसाइड, ओके। Now what are the factors responsible that it can consist more population? Yeah, see, it's very easy, okay, how? अब हमको मालूम है, राइट, हम कहाँ कहाँ रह सकते हैं अच्छे से। प्लेन एरिया होगी तो हम रहेंगे, और जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगा यानी रिवर वैलीज, ओके, तो जहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेन्स होगा, तो हम वहाँ पर अच्छे से रह सकते हैं, ओके। सो दिस वाज अ क्वाइट इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड। हमने देखा कि लैंड क्या है, वो कितना पार्ट कवर करती है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर द पॉपुलेशन टू रिसाइड, ओके, एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स थ्रू विच पॉपुलेशन कांट रिसाइड in that particular area, right? So let's move ahead, let's see what's next we are going to learn. See, we are going to see different uses of land, okay. So देखो, land के बहुत सारे use हमको पता है, right? It can be or in a different manner, okay. Someone can use it for forestry, someone for mining, someone can use it for building roads and houses, someone can use it for setting up factories and doing agriculture, okay. तो land के बहुत सारे बहुत different uses हैं, okay. It depends upon person to person, okay. It depends upon what he want from land, okay. उसकी use क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, it depends on that particular factor, okay. So as we saw, there are many different uses of land. Land can be used for different purposes, as in for forestry, mining, building roads and houses, setting up factories, agriculture, okay, doing some other farming activities. तो हर ये चीज़ के लिए land का use किया जा सकता है, okay. See, now as we saw that there are the different uses of land, so what are the factors that determine use of land? कौन से ऐसे factors हैं जो उस land के use को determine करते हैं? Now yes, most important, availability of water. अगर पानी सही होगा तो हम उस land का use कर सकते हैं। Climate, soil, topography, technological usage, minerals. ये जो topography है, that is a physical feature of our of land, okay. ये एक physical feature होता है लैंड का, फाइन। सो जहाँ पर पानी अबेंडेंट में होगा, ओके, क्लाइमेट सही होगा, सॉइल सही से होगी, या सॉइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ओके, इन डिटरमाइनिंग द यूज ऑफ लैंड। देन टेक्नोलॉजिकल यूजेज, मिनरल्स, ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। तो ये सारी चीज़ें हैं दैट डिटरमाइंस फैक्टर्स, सॉरी, दैट डिटरमाइंस यूज ऑफ लैंड। Cleared? What are the factors determining use of land? Okay, let's proceed. Okay, so what's next? Classification of land. Now how land can be classified, उसके कितने types है, okay. So there are two different types of land. Land can be classified into two different types. One is private land and another one is community land, okay. तो ये कितना आसान है, इसका नाम ही हमको बता देता है, right? So what are private lands? See, private lands are owned by individual and they are not available for public. They are used for private purposes, okay. ये जो लैंड्स होती है, प्राइवेट लैंड जो होती है, जो किसी एक की ही होती है. Let's take an example that a house of your dad is just a house of your dad, or a house of your family is just a house of your family. Okay, no one else can use it prior your permission. Okay, without your permission.
ठीक है, आपके परमिशन के बिना जो है कोई आपके घर को यूज़ नहीं कर सकता। ओके, सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ प्राइवेट लैंड या फिर जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर लैंड ऐसी ज़मीन जो प्राइवेटली इंडिविजुअल ओन करता है, ओके, जो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है unless and until you permit them, and which is just used for private purposes. Okay, and what are community lands? See, total opposites of private land, owned by community or a group of people. Okay, it is available for public, fine, and it can be commonly used by any people, right? That is community land. समझ में आ गया कम्युनिटी लैंड क्या है? अभी जैसे ग्रुप ऑफ पीपल दे आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर परचेसिंग वन लैंड फॉर देयर ओन यूज़। फॉर एग्जांपल वो जो है वहाँ पर सब एक साथ मिलके कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं या फिर फार्मिंग एक्टिविटी करना चाहते हैं या हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, एंड इट कैन बी यूज्ड बाय डिफरेंट पीपल। ओके, सो इट्स नॉट बैरियर फॉर वन इंडिविजुअल, सॉरी इट्स नॉट बाइंडेड टू द वन इंडिविजुअल, ये सबके लिए ओपन है। ओके, समझ में आ गया व्हाट आर प्राइवेट लैंड एंड व्हाट आर कम्युनिटी ओन लैंड। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड, देखते हैं अपन आगे क्या है। ओके, सो इन द टॉपिक वी आर गोइंग टू सी प्रॉब्लम्स विथ लैंड। क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो लैंड के साथ हो सकते हैं या हो रहे हैं। सो व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स? फर्स्ट प्रॉब्लम इज unlimited needs but limited lands. Yes, this is a very huge problem. Rapid urbanization, land degradation, encroachment of lands for commercial purposes, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन। देखो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अनलिमिटेड नीड्स बट लिमिटेड लैंड्स का मतलब क्या है? सी डे बाय डे पॉपुलेशन इज जस्ट इंक्रीजिंग एंड वी आर सेकेंड आफ्टर चाइना। ओके, चाइना इज़ द फर्स्ट इन द पॉपुलेशन एंड वी आर सेकेंड। तो हमारा भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है। वी आर कटिंग फॉरेस्ट, हम जो है फॉरेस्ट को काट रहे हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए। ओके, हमारी नीड्स बढ़ी जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज बढ़ रही है, फिर रोड कंस्ट्रक्ट करने हैं, डेवलपमेंट करनी है ना, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोगों के लिए घर बहुत बन रहे हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। सो दिस आर द प्रॉब्लम्स। ओके, एंक्रोचमेंट ऑफ लैंड्स फॉर कमर्शियल पर्पजेस, हमने ये भी देखा, राइट। सो ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हो रहा है, सॉरी ये सारे प्रॉब्लम्स है जो लैंड को फेस करने पड़ते हैं, एंड इन दिस वे वी आर क्रिएटिंग थ्रेट टू द एनवायरनमेंट, okay, which results into the land degradation and all. Cleared? These are some problems that are happening with land. Okay, और बहुत सारे problems हो रहे हैं. So what we should do? We should avoid it. We should conserve it. We should do the conservation of land. Now how you are going to do the conservation of land? आप ज़मीन को conserve कैसे करोगे? So we can do by checking rate of degradation of land, afforestation, land reclamation, regulated use of chemical fertilizers. Okay, avoid overgrazing. आपको क्या क्या करना है? See here. Okay, we need to check rate of degradation of land कि कितनी ज़मीन अपन ने जो है डिग्रेड की है, ओके, या कितनी ज़मीन हम डिग्रेड कर रहे हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, एंड इफ इट्स इन मोर क्वांटिटी आपको जो है रिड्यूस करना है। यू शुड रिड्यूस द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। Cleared? And afforestation. What is afforestation? It is opposite of deforestation. कि deforestation में हम क्या कर रहे हैं? झाड़ों को, दरख्तों को, प्लांट्स को काटते हैं, बट अफॉरेस्टेशन में वी शुड ट्राई टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, दैट इज अफॉरेस्टेशन. ओके, सो व्हाट इट विल डू, इट विल हेल्प टू क्लीन आवर एनवायरनमेंट. ओके, लैंड रिक्लेमेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रिएटिव वे to conserve land. Regulated use of chemical that is fertilizers and all. आप जो है उसको chemical fertilizers को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करो. ओके, हाउ? सी फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में जब आप जो यूज़ करते हो, सो व्हाट यू आर डूइंग, आप जो है ज़मीन की फर्टिलाइजेशन को ख़त्म करते हो. सो व्हाट यू शुड डू, ट्राई टू यूज़ फर्टिलाइजर्स एंड ऑल. ओके, एंड नेक्स्ट वन, लास्ट वन, which is most important, that is you should avoid overgrazing. जो हमारे जानवर, ओके, वो whatever they are eating, ओके, हम जो उनको फीड करते हैं, so you should avoid overgrazing of animals. Okay, clear? So this was the way how you can conserve land. Fine. So in this video we have covered everything about land from the topic.
Okay, and in the next video we will continue with the next subtopics, that is soil and water. Okay, we will move toward the natural resources. Fine. So in the first part we have covered everything about land, and if you got any doubt you can comment in the comment section. Clear? So till that time, have a great time, great day, great night. Okay, take care. Bye bye.